वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3। बिल्कुल सही सुना आपने, सीजन 1 और 2 के बाद अब हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं सीजन 3 में। तो अगर आपके पास भी कोई व्यूज हैं, आइडियाज हैं तो जल्दी से भेजिए ताकि मैं जल्दी से उन्हें इस इंस्पिरेशनल राइड का हिस्सा बना सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, दिस इज अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक, पॉजिटिव एंड हैप्पी। तो शुरुआत करते हैं इस पहले एपिसोड का, इस थर्ड सीजन के एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। दो सीजन्स के बाद मैं आरजे दिव्या शर्मा लेके आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3। जी हाँ दोस्तों, एक शो जो आपको लेके जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ। अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो अगर आप भी चाहते हैं पॉजिटिविटी का तड़का अपनी जिंदगी में तो जरूर सुनिएगा इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. Stay happy, stay positive, stay healthy. The first segment of Inspirational Ride Season 3 is going to be full of tips, right friends? Tips, positive tips. And today our segment will be carrying positive tips in English. जी हाँ friends, sometimes these tips can be in English and sometimes these tips can be in Hindi. As of now, today the tips will be in English. So let us make our lives more positive with these tips, positive tips. The first tip of this evening is listen to music that gives off the same mood you want to be in. Whenever you're feeling low, try to understand the mood you are in and then consider both the tone and type of music and also whether it brings back positive memories from the past. So if you are low or you are feeling like you don't know what is your mood, try to understand the mood and then play the music accordingly. Let the music shower its magic to your life and bring some positivity in your mood. Try it and it will instantly bring some positivity in your circumstances. The second tip for today is eat healthy. Many times we are very stressed, we feel low, we feel very heavy. Maybe because of our work, relationships or many other things. But if you are eating healthy, it can prove little positive for you. Whenever you are feeling low, try to eat something healthy and make sure you are eating the dishes you like the most and it will instantly change your mood for better. Try it and you can share your experience with me. So whenever you're feeling low, try to eat something healthy and make your moment positive instantly. Third tip for today is make a sunshine file or box. It means oftentimes when people send me kind messages or letters, mails, chats, I save them as a screenshot either in a file on my computer or in a box in my house. You can simply save the messages or the chats you had with your friends or people. Make sure these chats are positive and they instilled something optimistic in you. Try it and whenever you are low, go through the chats and messages which were saved by you and you will definitely and instantly feel positive and light. Give it a try and let me know. Next tip for today is surround yourself with positive influences. Find people who believe in you and your dreams. Seek out others who make your spirit feel full and lifted. The other people who bring you down, decide for yourself if they really have a place in your life. If they don't, have the courage to move on.
For the record, anyone who makes you feel like crap about yourself does not have a place in your life. So friends, whenever you are meeting a person who is not bringing out the best in you, decide whether he has a place in your life or not. If not, then gather some courage and kick them out from your life. It will definitely bring some positivity in your life. The next tip for today is practice positivity. By this I mean bring some positive activities in your life little by little. Change your mindset. Just the way a photographer eventually starts seeking the world in pictures, there are things we can all do to eventually see the world in a positive light. So it's up to us whether we are looking at the world in a positive frame or a negative one. Ball is in your court, you have to decide. The last tip for today is set goals. Yes, set goals. Having goals to work towards can make us more positive when we feel stagnant and unconfident. It's a lot easier to see the bad parts of life. Start small and remind yourself of all the great things you can accomplish. We love goals here at our place, our job, or wherever we are staying or living. So it's up to us. If we are following our goals, if we are thinking about what we can accomplish, we can try to bring in some positivity in our lives. So friends, these were 6 tips for today, and if you do have some positive tips, don't forget to share with me, RJ Divya Sharma, and I will definitely make them a part of this inspirational ride. So for now, I have to take a quick break. We'll be back with series of segments. You are listening to Inspirational Wings Season 3. Happy listening, stay positive, stay happy. कदम बढ़ाते हुए अब हम आ गए हैं सेकंड सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऑडियो क्लिप की। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसी ऑडियो क्लिप जो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लाएगी हमारी जिंदगी में और शायद एक तड़का लगा दे लाइटनेस का। तो चलिए फिर सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को। आज की जो ऑडियो क्लिप है ये है इंग्लिश में, तो चलिए फिर सीखते हैं और समझते हैं कि क्या है इसमें एक ऐसा तड़का जो हमारी लाइफ में लगा सकता है पॉजिटिविटी का ट्विस्ट। तो चलिए फिर सुनते हैं। आई एम गोइंग टू प्ले इट राइट अवे। स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड। There is nothing as powerful as a changed mind. You can change your hair, your clothing, your address, your spouse, your residence. But if you don't change your mind, the same experience will perpetuate itself over and over again, because everything outwardly changed, but nothing inwardly changed. If you want something out of life, if you want to change yourself, if you want to acquire something, if there's some goal that you want to reach, changing your behaviors, overcoming negative habits, it's challenging. It's hard. Most people go through life never discovering what their talents are. Most people never develop their talents. The only thing that's going to make you happy, my friend, in this year or any other, is to step up. It's to raise the standard. It's to discover what you're capable of and feel that incredible power of pushing through whatever's holding you back and get to the other side of more of your true self. That's what this game's all about. When you step into your fears and continue to push yourself to go on, something happens for you. If you look at somebody who's really successful and you think, wow, I mean, they're so amazing, they're such a genius, you gotta dig underneath and you gotta remember something. People are rewarded in public for what they've practiced for years in private.
you don't develop the courage to do that which has been given you to do, and you spend a lot of time going around trying to convince other people or trying to get their approval, what will happen is that you will lose your nerve. And other people will convince you that what you're doing doesn't have any value, and you'll give up on your dream. How much time do you have left? How much time do you have left? When you start thinking about that, we don't know. Most of us don't use the stuff that we have brought into the universe. Stop wasting valuable time. If you want something, you have got to be relentless. You've got to learn how to become resourceful. You've got to learn how to become creative. The power to hold on in spite of everything, the power to endure. This is the winner's quality. The hunger, the ability to face defeat again and again without giving up. This is a winner's quality. What this power is, I cannot say. All I know is that it exists, and it becomes available only when a man or a woman is in that state of mind in which he or she knows exactly what he or she wants and is fully determined not to quit until they find it. There's greatness in you, and you've got to learn how to tune out the critics outside and the critic inside. So I'm going to harness my will, and I'm not going to let anything stop me. I deserve this. Most people give up on themselves easily. You know the human spirit is powerful. There's nothing as powerful. It's hard to kill the human spirit. You are unstoppable. Live your life with passion, with some drive. Most of us go through life with our brakes on, holding back. Decide that you're going to push yourself. You've got to focus on you. And as you convince you, as you sell yourself every day, you will begin to see a difference in the things that you're doing. Selling yourself on your ability to perform a job, to achieve a certain objective. Telling yourself every day, here I go again. And I got what it takes. This is my day, and nothing out here is going to stop me. तो थी ना ये एक अमेजिंग सी ऑडियो क्लिप। वेल बिल्कुल खूब कहा है और सही भी कहा है कि there's nothing so powerful as a changed mind। तो अगर आपने अपने माइंडसेट को बदल लिया है, अगर आपने अपने दिमाग में ये चीज बिठा ली है कि अगर आप कुछ चेंज करेंगे तो आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, और आप अपने जो माइंड है चेंज कर लेते हैं, तो क्या नहीं पा सकते। तो क्यों ना आजमाया जाए इस स्ट्रेटेजी को अपनी लाइफ में। तो आज आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ कि हमारे जो माइंडसेट में क्या है ऐसा जो चेंज हो सकता है। मानती हूँ कि एकदम से चेंज नहीं होगा, पर ग्रेजुअली जरूर होगा। तो चलिए फिर आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगी। अभी के लिए कदम बढ़ाते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, पर उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है ना दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा एंड यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. या तो मेरी जबान खाली है या आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि मैं जो भी बोलता हूँ उसे अगले हफ्ते सच साबित कर देते हो। तो कौन सी ये बात है? और बॉलीवुड की और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें जानने के लिए इस संडे ठीक शाम 7 बजे सुनिएगा रेडियो उड़ान पर उड़ान टॉप 10 मेरे यानी अनोखे अंकित के साथ। और अभी मेरे मोर टीजर्स एंड प्रोमोस के लिए कीप वॉचिंग माई फेसबुक एंड साउंड क्लाउड। सुनते रहो रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ।
यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनकी मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. दोस्तों, रोजाना की जिंदगी में अगर एक छोटी सी कहानी मिल जाए मॉरल के साथ, जिससे हमारी जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, लाइटनेस आ जाए, उजाला आ जाए, तो बात ही क्या है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी कहानी की हम बात करेंगे अक्सर इस सेगमेंट में, जिसमें एक ऐसा मॉरल होगा जो हमें कुछ ना कुछ सिखाएगा, सीख देगा, पॉजिटिविटी देगा और हमें शायद जो नेगेटिविटी का अंधेरा है उससे लड़ने के कुछ जुगाड़ भी बता दे। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम इस कहानी की तरफ। और जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा जो आज की कहानी है वो हिंदी में होगी। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। रोज की तरह दफ्तर का जो समय था वो खत्म होने वाला था और जो एम्प्लॉयज थे, लोग थे, वो निकल रहे थे, जा रहे थे घर की तरफ। कुछ समय बाद जो गेट कीपर था वो मानो किसी की इंतजार कर रहा, जो गेट पे खड़ा रहा और कुछ आधे घंटे तक किसी चीज या किसी व्यक्ति की खोज में था। कुछ समय बाद जब वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं था, तो वो जो गेट कीपर था वो ऑफिस के अंदर गया और यहाँ वहां देखने लगा, जांच पड़ताल करने लगा, मानो किसी चीज को ढूंढ रहा हो या किसी व्यक्ति की खोज में हो। ढूंढता रहा, कॉन्फ्रेंस हॉल में गया, ऑफिस में गया, कैबिन्स चेक किए, वॉशरूम्स चेक किए और बाद में एक कैबिन रह गया था। जब वहां से गुजरा तो उसके ध्यान में आया कि वो लॉक था और वहां कोई व्यक्ति फंसा हुआ था। उसने तुरंत दरवाजा खोला और जो अंदर व्यक्ति था उसे बाहर निकाला, मानो किसी ने गलती से लॉक लगा दिया और वो व्यक्ति अंदर रह गया। तो जो वो व्यक्ति था वो उसी दफ्तर में एक अच्छी पोस्ट पे काम करने वाला एम्प्लॉय था। बाहर तक आते आते गेट कीपर से वो बातें करने लगा और जब वो बाहर पहुंच गए और वो जो व्यक्ति था, ऑफिसर था, वो जब घर की ओर निकलने लगा तो उसने बड़े उत्साह से पूछा, अरे भाई, तुम्हें कैसे पता लगा मैं अंदर था? जब दफ्तर बंद हो गया था 6 बजे और अब 7 बजने वाले हैं, तो तुम खड़े क्यों रहे? तुम्हें क्यों लगा कि शायद मैं अंदर रह गया हूँ? जो वो गेट कीपर था उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी और साथ ही बोला, अरे साहब, आप ही तो हो जो रोज सुबह मुझे एक मुस्कुराहट से नमस्ते करके जाते हो, आप ही तो एक स्माइल देके जाते हो। तो अब इतने कर्मचारियों में एक ही कर्मचारी हो जो आपको एक मुस्कान से नमस्ते करे, ग्रीट करे, तो फिर वो व्यक्ति की इंतजार तो किसे नहीं हो गई। तो उसी तरीके से रोज आप मुझे मुस्कुराहट से गुड मॉर्निंग कह के जाते हो, हेलो कह के जाते हो और शाम को भी उसी मुस्कुराहट के साथ बाय करके जाते हो। तो आज सुबह मैंने देखा कि आप मुस्कुराहट से मुझे हाय तो करके गए, पर शाम को वो मुस्कुराहट मुझे लगी कहीं गायब है, तो मुझे चिंता होने लगी और इसी चिंता के कारण मेरी जो उत्सुकता थी कि आप कहाँ हैं, आप ठीक तो हैं, वो मुझे अंदर तक खींच लाई और मैंने आपको ढूंढ लिया। तो इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य था, क्योंकि आप ही तो हैं जो एक अच्छी तरीके से बिना भेदभाव के मुझे मुस्कुराहट से एक सुबह और शाम ग्रीट करते हैं।
ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मेरा ध्यान था और मैं आपको बाहर ले आया और मुझे मौका मिला आपको बाहर निकालने का। तो इसी के साथ जो वो साहब थे उन्होंने गेट कीपर को गले लगाया और वो चले गए। कुछ समय बाद घर पहुंचने के बाद इतनी चीजों के बीच जो वो कर्मचारी था वो सोच रहा था कि कैसे एक छोटी सी पॉजिटिव चीज ने उसकी जान बचा ली, उसका समय बचा लिया, नहीं तो वो पूरी रात बंद रहता और क्या पता क्या क्या होता उसके साथ। तो उसकी एक पॉजिटिव सी आदत ने उसकी जान बचा ली और कैसे उसकी ये जो आदत है स्माइल करके मिलने की सबको, वो उसे कितना प्रिय बनाती है लोगों की जिंदगी में। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें जो मॉरल मिलता है वो यही है कि अगर हम एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें तो हम बहुत ज्यादा असर डाल सकते हैं लोगों पे, एक बदलाव ला सकते हैं। हो सकता है कि वो छोटी छोटी चीजें हमारे लिए छोटी हो पर किसी व्यक्ति की जिंदगी में वो बड़ी चीज हो, जैसे कि इस गेट कीपर की जिंदगी में रही और उसे रोज सुबह अच्छे से ग्रीट करने वाला एक ही व्यक्ति था और उसकी इंतजार उसे हमेशा रहती थी। तो चाहे उस व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति से हाय हेलो स्माइल करके मिलने कोई बड़ी बात ना हो, गेट कीपर के लिए ये बड़ी बात जरूर थी कि एक साहब उसे रोज अच्छे से ग्रीट करके जाते हैं और अच्छे से बात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छोटी सी चीज है पर बहुत ही वेटेज है इसका। तो इसी छोटी सी पॉजिटिव मॉरल स्टोरी के बाद अब बारी आती है एक छोटी सी प्यारी सी ब्रेक की, पर मिलूंगी मैं आपको इसके तुरंत उस पार। तब तक के लिए बने रहिए और पॉजिटिविटी की और कदम बढ़ाते जाइए। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। दोस्तों, इन पॉजिटिव सेगमेंट्स के बीच क्यों ना बात कर ली जाए कुछ ऐसे थॉट्स की और सेइंग्स और वर्ड्स की। जी हाँ, ऐसी कुछ लाइनें जो हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकती है, हमारी पॉजिटिव लाइफ को और पॉजिटिव बना सकती है। तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं और जो ये थॉट्स होंगे ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, जो आज थॉट्स हम लेने वाले हैं सेगमेंट में वो है चाणक्य द्वारा। जी हाँ, चाणक्य को कौन नहीं जानता। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम। पहला थॉट जो इस शाम का है वो इंग्लिश में है। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। You cannot live long enough to make them all yourselves. Very rightly said that you should learn from the mistakes of other people because you don't have such a long life to commit all such mistakes and learn from them. In the nutshell, the point is learn from the mistakes of other people. The second thought of this evening is in Hindi. एक व्यक्ति को जिंदगी में इतना भी सच्चा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले ही काटे जाते हैं और इसी तरीके से जो बहुत ही सच्चे लोग होते हैं वो सबसे पहले बलि चढ़ते हैं, उनका सबसे पहले काम तमाम होता है। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं कहती कि आप सच बोलना छोड़ दीजिए, पर ये जरूर कहती हूँ कि जो सच्चाई है वो बहुत ज्यादा सच्चाई भी मत बोलिए कि आप सबसे पहले हलाल हो जाएं। ये थॉट है चाणक्य का, कुछ ना कुछ तो सिखाता है ना। चलिए फिर अगले थॉट की तरफ कदम बढ़ाते हैं। Even if a snake is not poisonous, it should pretend to be venomous. Very rightly said. If a thing is not too dangerous, it should at least look like as if it's dangerous. So friends, this was another thought by Chanakya, and the thought denotes that you should at least pretend that you are dangerous so that everybody cannot take advantage of you. तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम अगले थॉट की तरफ। हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो छुपा ही होता है दोस्तों, कोई ना कोई कारण तो होता ही है। यहाँ पे इस दुनिया में कोई भी ऐसी दोस्ती नहीं है जिसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, जिसमें अपना कोई भला ना हो किसी का। और वैसे तो दोस्तों ये एक बिटर ट्रुथ है, कड़वी सच्चाई है कि हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और बिना वजह के कोई दोस्ती नहीं होती।
तो ये भी एक खूबसूरत सा थॉट था चाणक्य द्वारा। वैसे तो जब हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं अरे वो तो मुझे बहुत ही प्यार करती है या करता है, या मैं बहुत प्यार करती हूँ, बट कहीं ना कहीं डीप इन अवर हार्ट कुछ तो छुपा होता है उस दोस्ती के पीछे, कोई ना कोई कारण वजह तो होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है। तो चलिए इस थॉट के बाद अगले थॉट की तरफ कदम बढ़ाते हैं। बिफोर यू स्टार्ट सम वर्क, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ 3 questions. Why am I doing it? What the results might be, and will I be successful? Only when you think deeply and find satisfactory answers to these questions, go ahead. Right, friends? Whenever you are in a situation, try to ask yourself these 3 questions, and when you are satisfied that yes, you are going to do it, and you are going to do it because you have a reason to do it, and you want something to achieve, only then take a next step. This was another beautiful thought by Chanakya. तो चलिए अगला जो थॉट है वो कुछ इस तरीके का है। इससे पहले कि जो डर है वो आपके दिल दिमाग तक पहुंचे, उस डर को खत्म कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल साधारण सा ये एक विचार है कि इससे पहले कि जो डर है आप तक पहुंच जाए, आपके पास आ जाए, उस पे अटैक कर दीजिए और उसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। क्योंकि डर अगर एक बार आ गया तो फिर वो जाना इतना इजी नहीं है। इसीलिए अच्छा है कि जब डर आपके ऊपर काबू पाने वाला है, उसके ऊपर आप काबू पा लीजिए और उसको अटैक करके डिफीट हरा दीजिए। तो ये एक और सुंदर सा थॉट था चाणक्य द्वारा। नाउ द लास्ट थॉट ऑफ दिस सेगमेंट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पावर इज द यूथ एंड ब्यूटी ऑफ अ वुमेन। जी हाँ दोस्तों, वैसे हो सकता है कई लोग ना भी मानते, पर सच्चाई तो यही है कि the world's biggest power is the youth and beauty of a woman. जी हाँ, the biggest power in the world is the beauty of women carries. This was the last thought by Chanakya for today's segment. So friends, मुझे उम्मीद है कि ये जो thoughts हैं कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में, वो आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे। अगर आपके पास भी कुछ सुझाव हैं और आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, व्यूज हैं या थॉट्स के सेइंग्स वर्ड्स लाइंस हैं, तो जरूर शेयर कीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी उन थॉट्स को अपने इस सेगमेंट का एक हिस्सा बनाने की। तो चलिए फिर जल्दी से फटाफट भेजिए, और हमारी वेबसाइट तो आपको पता ही है, और इंस्टेंटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्काइप पे। स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN. So what are you waiting for? Let the world hear your voice, thoughts, quotes and everything you share with me. तो चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ कदम बढ़ाते हैं आगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है ना। Stay positive, stay happy, stay tuned. नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। क्या आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं, या फिर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को और भी गहराई से जानना चाहते हैं? तो ये अपॉर्चुनिटी आप ही के लिए है, क्योंकि बैरियर ब्रेक लेकर आया है 5th एडिशन ऑफ टेकशेयर इंडिया 2016 टुवर्ड्स डिजिटल इंक्लूजन, जो कि होगा 3 और 4 मार्च को इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। ये टेकशेयर इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन है, जहां पर एक्सेसिबिलिटी एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन किया जाएगा। इस इवेंट में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए लॉग ऑन करें techshare.barrierbreak.com पर, या फिर हमें मेल करें techshare@barrierbreak.com पर, और जुड़ जाएं एक डिजिटल वर्ल्ड के साथ। दिस इवेंट पार्टनर्स NCPEDP एंड RNIB, organized partner Barrier Break, creating a limitless future. Silver sponsors Adventure High Performance Delivered. Government partner Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. Supporting sponsors
Adobe Accessibility Kit Sponsor Person, Radio Partner Radio Udan A Flight of Life, Outrage Partner Accessible India Campaign, Supporting Partner Bitch Diva India, G3ICT, DEF Digital Empowerment Foundation and Daisy BFI. विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन समय की है आवाज यही, सुगम भारत अभियान सफल हो सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com. तो दोस्तों, कैसा रहा ये पहला एपिसोड इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3 का? जरूर बताइएगा मुझे। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है www.radioudan.com। साथ ही स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान और फेसबुक पे भी आप हमारा पेज लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हैं हमें। लिंक है www.facebook.com/radioudan। तो इंतजार किस बात के, जल्दी से अपना स्टफ भेजिए, आइडियाज भेजिए, व्यूज भेजिए और मैं आपका जो स्टफ होगा, थॉट्स होंगे, क्यूट्स होंगे और जितनी भी ऑडियो क्लिप या कहानियां होंगी उन्हें इस शो का हिस्सा जरूर बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, इंतजार रहेगा मुझे आपके स्टफ का और आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान और साथ ही इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 एवरी ट्यूसडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी वेडनेसडे 4 to 5 PM। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने स्किप कर दिया कोई एपिसोड इंस्पिरेशनल विंग्स का तो जरूर सुन सकते हैं आप यूट्यूब पे भी। जी हाँ, यूट्यूब पे चैनल तो आपको पता ही है, हमारा रेडियो उड़ान का चैनल है। तो वहाँ पे इस ब्रॉडकास्ट के बाद मैं अक्सर जो इंस्पिरेशनल विंग्स के एपिसोड हैं वो वहाँ चढ़ाती हूँ, तो आप जरूर सुन सकते हैं वहाँ पे और वहाँ पे भी अपने जो व्यूज हैं ड्रॉप इन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते तक मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगी आपको मैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और साथ ही एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाते जाइए। So don't forget to share this positive stuff with your friends, colleagues, relatives and everybody around you because we all have to bring in some positivity and wipe away some negativity. So chaliye, good luck, good night and happy listening. In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 PM and repeat every Wednesday 4 to 5 PM only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. Radio a flight of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Live.